Hello students. Now today also we are here for speed, distance and time. This is another video for some tricky questions which are very difficult to solve. So today we are solving this, even though I have written the point according to this year to solve, but I will give you a very easy trick, easier than what I have given formula. I will give, so please stay on video and watch full video at the end. Right? Let us start now. The point is, when any person or vehicle runs at the rate of different speeds. Okay, if they are running at the different speeds, if he is going at a particular speed and then he is increase or decrease the speed, then going for same destinations, they are going for same place only. If he is going to Delhi, then he is going for the speed of such speed differently and another speed different. So that time what you have to do is, and what happens if he is running with the speed of uh, more, then he will reach earlier. If his speed is less, then he will reach late. So in this case what you have to do is, one formula is given here. That time you have to find out this distance is equal to multiply of speeds. Both the speeds are given, you have to multiply both the speeds and subtraction of speed, and also in division you have to subtract and multiply sum of time will be also given. So for that I have given one example. See the example. If a person goes at the speed of 30 km per hour, he reaches his destination 10 minutes late. As I said here, early or late. Okay, तो अगर वो 30 किलोमीटर स्पीड से जाता है तो ही इज रीचिंग 10 मिनट्स लेट, 10 मिनट लेट पहुंचेगा. एंड इफ ही गोज एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज 10 मिनट्स अर्ली to his destination. So find the distance, how much distance he is covering. So what you have to do is, first of all we'll go with this formula, then I will teach you very simple easiest way how to find out the distance in such case. So formula is, distance AD is equal to multiply of speed S. Okay, in short I am writing subtraction of speeds into sum I will write full, that's if you cannot confuse, sum of time. Which is time here in given the question. Multiply by speed, what are the speeds? 30 into 42, right? Both the speeds, one speed is 30 km per hour, other is 40 km per hour, both the speeds. And subtraction also, so greater number will write previously than smaller number, into addition of time, 10 minutes plus 10 minutes, right? Now what is the uh, 30 into 42? I am not multiplying, only just I am writing. Now 42 minus 30 is equal to 12 into 20. Yes, this is time. It is in minute. So you have to convert this minute also into 60. Divide by 60 and you will convert this in hours, because the speeds are in kilometer per hour. Now 6 7 jar, 6 2 jar. Okay. Then 15 2 jar to cut. Okay. And here also you have to cut this 20 3 jar 60 and 3 5 jar 15. So 5 and 7 has remained. So 5 7 jar 35. 35 kilometer is the distance. So what we have done here, again I am explaining, multiplication of speeds, so 42 into 30, then subtraction of speeds, 42 minus 30, into sum of time. Sum of time, it is given in minutes, so I have added 10 plus 10, then I have converted into hours, because the speed kilometer per hour is given. That case, if it is given that 1 hour late and 2 hour late, then you don't have to put 60 at downside. Okay, डिनोमीटर आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. अब
30 इंटू 42 मैंने एज इट इज लिखा है, 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12. नाउ कैंसलेशन कम्स, 30 12 से 6 5 जा 30, सॉरी 15, 6 7 जा एंड 6 2 जा एंड 15 2 जा एंड हियर 23 जा 3 5 जा, तो 5 इंटू 7 35. ये हमारा था ए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेथड. नाउ आई एम शोइंग यू माय मेथड, दैट इज वेरी इजी, that is very easy, so I will teach this method too. Now according to my method it is very easy, only you have to do one sum only. Now only we will consider one speed only. So s is equal to 30 kilometer per hour. Now per hour means 1 hour, that I explained in my previous video, previous to previous. Per hour means 1 hour. So here time is equal to how much? 1 hour. Per hour means 1 hour. And 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. Right? Okay. Now what happens? If he runs at the speed of 30 kilometer, he reaches 10 minutes late. वो कितने 10 मिनट्स लेट पहुंच जाता है. तो पहले अगर वो सेम स्पीड से जा रहा है तो कितने मिनट में पहुंचेगा? 1 आवर में 60 मिनट में पहुंचेगा. बट इफ ही इज रनिंग at this pace, he is reaching 10 minutes late. Late means you have to add the time 10 minutes. Okay, 60 this plus 10 minutes late उसका 10, तो 70 minutes हुआ. 70 minutes को आपको कन्वर्ट किस में करना है? 70 minute will be converted into hours. तो 0 0 कट, तो 7/6 hours. ओके, अब आपको टाइम मिल गया है. फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, स्पीड कितना है भाई आपका? 30 इंटू टाइम 7/6. अब ये लेंगे हम लास्ट वाला, तो 6 5 जा 30 कट, कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है 5 से 35 किलोमीटर. ये डायरेक्ट वन स्टेप में, खाली आपको यहाँ पे दिस वन यू हैव टू रिमेंबर. इफ द टाइम पर आवर मीन्स 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. 10 मिनट्स लेट पहुंचा है तो प्लस करना है, अर्ली पहुंचता है तो माइनस करना है. अगर आप इसको 42 वाला लेके उसमें से 10 माइनस टाइम में करके देखें तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, कोई आंसर में चेंज होता नहीं, बिकॉज वी आर रीचिंग टू सेम डिस्टेंस, डेस्टिनेशन सेम है, स्पीड अलग अलग है, इसलिए कोई अर्ली पहुंचता है तो कोई लेट पहुंचता है. तो इसके लिए आपको ये याद रखना है. ये फॉर्मूला मैंने एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको दिया था, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यू डोंट हैव मच टाइम, so in that case you have to use my simple method. Only just you have to add time late और early का जितना है that you have to add in given time per hour. 1 hour में ही वो यही आएगा. यहाँ पे 60 आएगा, मिनट है तो 60 आएगा. अगर आपको डायरेक्ट 1 hour लिखा है तो जितना यहाँ पे मिनट आपका 1 hour ये प्लस 1 hour तो 2 hours यहाँ पे आएगा. तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. अर्ली करना है तो माइनस करना है और लेट है तो प्लस करना है. बाद में आपका सिंपल मेथड स्पीड वाला वो फॉर्मूला, नथिंग इज हार्ड, वेरी इजी. ओके, तो दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन. ये खाली मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है ये फॉर्मूला, कि आपको समझ में आए कि किस तरह से ऐसे भी होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इजी एंड दिस इज वेरी शॉर्ट. इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें भी इस तरह से शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा. तो don't scroll, only stay on video. Now see here two trains are running, any two trains or any two vehicles also you can take. So first train goes and the second overtakes. एक ट्रेन पहले चल रहा है और उसको दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन उसको ओवरटेक कर रहा है. ओके, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ट्रेन which is going very fast, right? And then the speed of the second one. फिर आपको सेकंड का जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका पहले आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और जो स्लोअर ट्रेन है उसकी आपको फिर बाद में. ये फर्स्ट और सेकंड में इसमें एक क्या है, एक एक्सप्रेस है, सेकंड वाला एक्सप्रेस ट्रेन है. ओके, और फर्स्ट वाला है वो लोकल है, राइट? और एक लगेज ट्रेन यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया है हमने. तो एक ट्रेन ऐसे है, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है स्लोली. ओके, ये ट्रेन है और दूसरा यहाँ पे जा रहा है. ये कौन सा स्लोली है? स्लो वाला है. अब दूसरा उसको ओवरटेक कर रहा है, दूसरा ओवरटेक करेगा तो वो यहाँ पे बहुत स्पीड से जा रहा है.
राइट। तो उसको ओवरटेक कर रहा है, तो ऐसे सम आ रहे हैं। तो आपको किस तरह से करना है, डेट वी आर अंडरस्टैंडिंग विथ एन एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। एग्जाम्पल इस तरह से है, एन एक्सप्रेस ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड ओवरटेक्स द लगेज ट्रेन जो लगेज का भरा वो कंटेनर वाला होता है वो, इन 3 hours which was started 2 hours earlier. Find the speed of the luggage train. हमें स्पीड किसकी फाइंड की, यहाँ पे एक दिया किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लगेज ट्रेन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस खाली लिख रहा हो तो समझ में आ जाएगा। ओके, एक्सप्रेस का क्या है स्पीड भाई, s इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड ओवरटेक्स द लगेज ट्रेन इन 3 hours. It is overtaking luggage train in 3 hours. That means time of the express train is what? जितने आवर्स में जो ओवरटेक कर रहा है वो उसका टाइम है। कितना टाइम है भाई, t इज इक्वल टू 3 hours। नाउ दो चीज मिल गई, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, दो चीज मिल गई तो कोई तीसरी चीज मिल जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू s इंटू टी, राइट। s कितना भाई 90 और 3 इज इक्वल टू 270 किलोमीटर आपको डिस्टेंस मिल गया। अभी किसका मिला, ये एक्सप्रेस ट्रेन का। अब एक्सप्रेस ट्रेन और लगेज ट्रेन दोनों कहाँ पे मिलती है, ओवरटेक कहाँ करती है, एक जगह पे करती है। तो दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक जगह पे यहाँ पे ओवरटेक कर रहा है कोई भी चीज, ये पॉइंट है, यहाँ पे वो लोकल भी आ रहा है, यहाँ पे वो एक्सप्रेस जा रहा है, तो ओवरटेक कर रही है मतलब यहाँ पे दोनों एक साथ में होगी। तो डेट इज डेस्टिनेशन, डेट इज द डिस्टेंस। शुरू होने से यहाँ तक स्टार्ट भी एक जगह से हो रही है और एंड भी ओवरटेक कहाँ हो रही है, वो एंडिंग पॉइंट है। दैट मीन्स दैट इज द डिस्टेंस ऑफ बोथ द ट्रेन एंड द बोथ द ट्रेन डिस्टेंस विल बी सेम बिकॉज दे आर overtaking at particular place. Okay, meeting at particular place. Now we are going for local train or luggage train here. Luggage, local not luggage train. Okay, लगेज में क्या करेंगे, उसका स्पीड फाइंड करना है। तो डिस्टेंस मिल गया है, डिस्टेंस क्या करेंगे, सेम लेंगे 270 जो यहाँ पे आया है एक्सप्रेस ट्रेन का वो। अभी प्रॉब्लम कहाँ है, टाइम में है। अभी टाइम में क्या होगा, टाइम में यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बहुत अच्छी तरह पढ़ो। An express train overtakes the luggage train in 3 hours which was started 2 hours earlier. कब स्टार्ट हो रही है, 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रेन। कौन सा, ये लगेज वाला। और उसको 3 hours में उसने क्या किया, ओवरटेक किया। तो 2 और ये 3 hours दोनों का एडिशन करना है। क्या करना है आपको, ये जो टाइम है इसमें कोई 2 hours नहीं है। लगेज ट्रेन कितना टाइम ले रही है, 2 घंटे में पहुंचती, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो फिर तो लगेज ट्रेन नहीं तो एक्सप्रेस हो गई। इसलिए 2 hours वो पहले चल रही थी, तो वो 2 hours और 3 hours में उसने ओवरटेक किया। तो 3 + 2 5 hours इसका टाइम आएगा, तो 5 hours। अब आपको सिंपली आ जाएगा। अब स्पीड का फॉर्मूला खाली लगाना है, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। डी कितना है, 270 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट इज वेरी सिंपल। जब भी कोई व्हीकल या कोई पर्सन ओवरटेक करता है, तब आपको क्या करना है, ओवरटेक वाला जो पॉइंट है वहां पे कितना पहले निकला था वो आवर्स प्लस कितने टाइम में उसने ओवरटेक किया वो, उन दोनों के एडिशन करेंगे। और पहले वालों को पहले क्या करना है, जिसका स्पीड और टाइम दिया है, जो स्पीड वाला है उसका आपको क्या करना है, पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, लगेज ट्रेन का और एक्सप्रेस का, बिकॉज दे आर मीटिंग एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस, राइट। नाउ टाइम में अर्लियर वाला प्लस उसने ओवरटेक किया वो दोनों को प्लस करेंगे, टोटल टाइम आपको मिलेगा। फिर आपको सिंपल फॉर्मूला है, खाली यहाँ तक आपको याद ध्यान रखना है, बाकी तो आपको सब आता ही है। तो इट्स वेरी इजी, इतना सिंपल है। क्वेश्चन कितना लंबा है और आंसर कितना छोटा है, खाली आपको कैंसलेशन आना चाहिए। कैंसलेशन के लिए क्या आना चाहिए, टेबल्स आना चाहिए। टेबल्स नहीं आते तो हमारा एक पहले वाला एक वीडियो टेबल्स का बना है, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से टेबल बनाना है वो देखिए, तो आपको तुरंत ही टेबल आ जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट,
here what, sorry guys, the next point is when speed, distance and starting time is given. If any vehicle is running, any train or bus or car or scooter or bike, whatever is running, and starting time is given, speed is given and distance is given, and it is asked that at what time will it reach. So it is asked हाउ टू फाइंड एंडिंग टाइम, एंडिंग का टाइम कैसे निकालना है, वो पहुंच जो भी डेस्टिनेशन में पहुंच गया है, जो भी व्हीकल है उसको कितने बजे पहुंचा, वो टाइम फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द टाइम। उसमें आपको स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा, टी इज इक्वल टू करके टाइम आएगा। उस टाइम को क्या करना है, इफ इट इज greater than 60 or equal to 60 or more than 60 is given, then you have to convert into, if it is in minute then you have to convert into hour, if it is in second then you have to convert into minutes, if it is equal to 60 or more than 60 then that case only, if it is less than 60 only just you have to add to the given time, what is starting time is given, right, add this in starting time। ओके, इस तरह से आपको स्टार्टिंग टाइम में पहले क्या करना है, आपको टाइम फाइंड करना है स्पीड वाले फॉर्मूला वाले से। फिर आपको क्या करना है, अगर वो 60 और 60 से ज़्यादा है तो आपको 60 से डिवाइड करके उसको मिनट को आवर्स में, या सेकंड है तो मिनट में कन्वर्ट करना है। देन आपको जो भी आंसर है वो स्टार्टिंग टाइम के अंदर ऐड करना होता है। नाउ विल अंडरस्टैंड बेटर विथ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज लाइक दिस, अ ट्रेन स्टार्टेड एट 1:45 PM। एक ट्रेन है, दोपहर को 1:45 स्टार्ट हो रहा है, 1:45 PM, एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, और इसका स्पीड 60 किलोमीटर, ज़्यादा स्पीड है नहीं। एट व्हाट टाइम विल इट रीच द नेक्स्ट स्टेशन 165 किलोमीटर अवे, और एक स्टेशन पे पहुंचने वाला है, वो स्टेशन कितना दूर है, 165 किलोमीटर अवे है। तो आपको क्या दिया है भाई, एक आपको दिया है स्पीड, एक आपको दिया है डिस्टेंस दिया है, और एक दिया है स्टार्टिंग टाइम। आपको बोला है एट व्हाट टाइम विल इट रीच, कितने आवर्स में नहीं, एट व्हाट टाइम, कितने बजे पहुंचता है। कितने बजे पहुंचता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मैंने जैसे समझाया उस तरह से चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 165 किलोमीटर, दूसरा आपका स्पीड दिया है 145, सॉरी स्पीड इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर। पर मतलब वन, ये समझना, एक एक घंटे में, पर मतलब 1 आवर में कितना 60 किलोमीटर चलता है। वो आप लोग जो स्पीडोमीटर देखते हैं, आप जो भी व्हीकल चलाते हैं अपने डैडी और मम्मी, तो आप देखेंगे उसका कार का जो आगे आता है, या फिर बाइक या स्कूटर, उसमें अंदर स्पीडोमीटर आता है, उसके अंदर जो स्पीड होती है आप देखेंगे तो उसका जो है वो 60 पे जाएगा, कभी 40 पे, जैसे जैसे स्पीड डाउन करेगा नीचे आएगा, स्पीड बढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ता रहेगा। डिजिटल है तो उसमें डिजिट चेंज होते रहेंगे, तो दैट शो स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल 60। नाउ व्हाट यू टू फाइंड आउट, दो चीज दिए तो अभी क्या पता करना है, टाइम। टी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, टाइम को फाइंड करने कैसे करेंगे, डी अपॉन एस, राइट, हो गया, दिस इज एस। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस दिया है 165 और स्पीड दिया है 60 किलोमीटर। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, 165 है तो 60 से डिवाइड, 5 + 6 + 1, तो वो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हैं 60 के टेबल से। कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ। नाउ सी, ये लास्ट डिजिट इज 5, हियर 0, तो दोनों 5 से डिवाइड हो पाएंगे। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5 वी कैन डिवाइड बाय 5। तो ये भी 5 से हो रहा है, दोनों 5 से हो रहा है। इसको क्या करेंगे, 12 5 जा, और ये 5 से कितना का 55 5 हो रहा है, कितना आता है, नहीं 55 5 जो नहीं हो रहा है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15, यस 33। ओके, 33 इंटू 5, राइट, 33 इंटू 5 से हो रहा है ये। अब क्या करेंगे, 5 5 कैंसल, आंसर क्या बचा है 33/12। अब और भी डिवाइड हो रहा है 33,
33 हो रहा है ना, और 3 से होगा ना, 3 से और होगा। देखो 11 3 जा और 4 3 जा, तो 11/4 आंसर आ रहा है अभी। अभी ये क्या है, आपका आंसर नहीं है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल अगर 60 और मोर देन 60 आए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन करना पड़ेगा। कैसे, 11 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8 बराबर 3। तो कैसे लिखेंगे अभी इसको, 2 इंटीजर 3/4 आया। अभी भी हमारा क्लियर हुआ नहीं है। वाई, बिकॉज 2 आवर्स हमें मिल गए हैं, लेकिन पीछे 3/4 है। अभी 3/4 इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, ये आगे है होल नंबर, वो आवर है और मिनट है। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से, आवर को मिनट में कन्वर्ट 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 4 जा, राइट। तो कितना है अभी आंसर यहाँ पे, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो कैंसलेशन में थोड़ी ऐसा लग रहा था गड़बड़। तो पहले किया हमने 33 इंटू 5 किया और 12 इंटू 5, तो 5 कट हुआ, लेकिन ये 3 से कट होता था, इसलिए 33 को 11 से 11 3 जा और 4 3 जा, तो 11/4 आया। अब 11/4 इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना है, 2 इंटू 3/4। अभी 2 आवर्स होल नंबर हो गया, लेकिन जो पाछे जो फ्रैक्शन जो बचा है पीछे, उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया तो 15 4 जा, तो 4 कट हुआ, 15 इंटू 3 45 मिनट्स। ये आपका क्या है, टोटल टाइम आया है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एट व्हाट टाइम विल इट रीच। तो स्टार्टिंग टाइम क्या था भाई, स्टार्टिंग टाइम को यहाँ पे हम लिखो पहले, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये बॉक्स में पूरा ये समझा रहा हूँ आपको, ये टाइम वाला। ये यहाँ तक तो सिंपल है, ये तो कैंसलेशन में थोड़ा दिक्कत हुआ इसलिए, बाकी यहाँ तक तो सिंपल। लेकिन यहाँ से क्या है वो करना है आपको कैसे। तो क्या हुआ आपका स्टार्टिंग टाइम, यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज वेरी इजी। स्टार्टिंग टाइम क्या है भाई, 1.45 है और पीएम है, वो भी साथ में लिख के रखना है, क्योंकि आपको एएम पीएम में प्रॉब्लम नहीं हो। पीएम मीन्स पोस्ट मेरिडियन, एएम मीन्स एंटी मेरिडियन। बिफोर 12 नून इट इज एएम, और आफ्टर 12 नाइट इट इज एएम, राइट। अभी यहाँ पे 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स है, तो 2 आवर्स है पूरे और 45 मिनट्स, इसको ऐड करना है हमें। ऐड क्यों करना है, बिकॉज ये स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम है, इतना ये एंडिंग टाइम नहीं, इतना हमारा क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम, इतने टाइम में ये वहां से पहुंच रहा है। तो you have to add in starting time. So 5 5 10 1 9 and 3, 3.90 हुआ। अभी 3.90 तो कोई घड़ी में दिखाता है नहीं। अब क्या करना है ऐसे केस में, बहुत ये सिंपल है, बहुत याद रखना है, ये अच्छी तरह से यू हैव टू रिमेम्बर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं 3/90 को कैसे लिखना। तो कुछ भी करना नहीं, आगे में क्या करना है आपको, आगे अगर यहाँ पे पीछे वाला फिर से, ये बहुत सारे चैप्टर में ऐसे जो टाइम वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो पीछे अगर ये आफ्टर डॉट, यहाँ पे अगर 60 और मोर देन 60 है, तो आपको उसमें से 60 माइनस करना है पीछे से, यहाँ से 60 माइनस कर रहा हूं मैं, और ये आगे वाले में +1। वाई, बिकॉज ये 60 जो माइनस किया वो 1 आवर हो गया, वो उसमें ऐड हो गया, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4:30, और ये क्या था हमारा, पीएम। तो ये आंसर आपका हो गया। फिर से ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग टाइम इज 1:45 पीएम, और हमारा कितना टाइम हमने लिया है ट्रेन ने, 2 आवर्स एंड 45। तो स्टार्टिंग टाइम में जो जितना यहाँ पे टाइम आ रहा है वो ऐड करना है। सिंपली इससे नीचे के नीचे लिखना है 2 आवर्स और ये 45, उसको सिंपल एडिशन करना है तो 90 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे 60, रिमेंबर 60 और मोर देन 60 इन दैट केस ओनली, अदरवाइज यू डोंट हैव टू सबट्रैक्ट एनीथिंग। if it is 60 or more than 60 here, then you have to subtract 60 here and +1 here, right। so 60 माइनस किया तो 30 यहाँ पे आया, और +1 किया 4, तो 4:30 PM इज योर आंसर। तो एंडिंग टाइम क्या होगा, 4:30 PM। देखो बहुत इजी है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर सम टेक्निक्स। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैथ्स तो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट मैथ्स है। बाकी सब सब्जेक्ट में आपको लर्न करना पड़ता है, कितने देर तक
जग जग के रात को भी ऐसे करना पड़ता है। लेकिन मैथ्स ओनली जस्ट टू प्रैक्टिस और यू कैन प्ले विथ मैथ्स, इट इज़ लाइक अ गेम। आप जैसे जो गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन, ओके, तो उस तरह से मैथ्स के साथ खेलना है। मैथ्स इट इज़ गेम एंड इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। एंड इस तरह से आप वीडियो देखते रहे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है कोई भी चैप्टर के बारे में, यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो एंड you will get the answer of that question. Thank you for watching my video. Thank you so much.